Good afternoon, everybody. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. How are you, all of you? कैसे हैं आप लोग? Everything is fine. Let me share my screen. The screen is visible to all of you guys. Hello. Good afternoon, everybody, class. Are you with me? Let me share my screen. The screen is visible to all of you. The screen is visible to all of you guys. Hello. So today I'm going to start a very important topic, that is the Sales of Goods Act 1900 to 1930. Right? It is very important for your exam point of view also. So सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू explain this is the introduction part. Sales of goods is one of the specific form of contract recognized and regulated by in India, right? Sales is a typical bargain between the buyer and the seller. The Sales of Goods Act 1930 allows the parties to modify the provisions of the law by express stipulations. However, in some cases, this freedom is severely restricted. Sales of Goods Act 1930 is an act to define and amend the law relating to the sales of goods. It extends to the whole of India. It came into force on 1st July 1930, right? So now, what is the scope of this act, right? The provision of the act are applicable to the contracts related to the sales of goods, right? Which means movable properties. The act is not applicable for the sale of immovable properties like land, shop or house. ये एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे नहीं लगता है. इट इज एप्लीकेबल ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टीज, राइट. So the general provisions of the Indian Contract Act 1872 apply to the contract of sale of goods.
insofar as they are not inconsistent with the express provisions of the Sales of Goods Act. The expression used but not defined in the Sales of Goods Act 1930 and defined in Indian Contract Act 1872 have the meaning assigned to them in that act. Now, let me make you understand the what is the definition of say definition some of the important definitions under the Sales of Goods Act 1930. So the Sales of Goods Act 1930 define the term which have been frequently used in the act, which are as follows. Number one is buyer and the seller, right? Buyer and seller. So buyer, what do you mean by buyer? Can anybody tell me what do you mean by buyer? बायर किसे कहते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? बायर किसे कहते हैं? बोलो, आर यू विद मी? व्हाट डू यू मीन बाय बायर? नेहा, हेमंत सैनी, श्रद्धा, नितिन वर्मा, व्हाट डू यू मीन बाय सेलर? Sir, seller. Sir, anybody who sells a good. Anybody? Anybody who sells a good. Okay, is known as seller. ठीक है? Whenever the contract of sale is formed, there are two parties involved, right? There are two parties involved, guys. Number one is seller and second one is the buyer. दो parties का involvement होना जरूरी है, right? Clear है? So buyer and seller. Buyer means a person. Buyer किसे कहते हैं बच्चे? Buyer means a person who buys or agrees to buy goods, right? Seller means a person who sell or agrees to sell the goods according to section 2 subsection 13. The two term buyer and seller are complementary and represent the two parties to a contract of sale of goods. Both the terms are, however, used in sense wider than their common meaning. Not only the person who buy, but also the one who agrees to buy is a buyer. Similarly, a seller means not only the person who sell, but also a person who agrees to sell. राइट? तो सैलर की बात, सैलर की डेफिनेशन में क्या बच्चे कवर हो गया? जो इंसान बेच रहा है, सैलर मींस नॉट ओनली द पर्सन हु सेल बट आल्सो अ पर्सन हु एग्रीज टू सेल. जो इंसान अपना सामान बेचना चाहता है, एग्री कर रहे हैं, फ्यूचर डेट के लिए एग्री कर रहे हैं, राइट? कि फॉर एग्जांपल you went to the go down and ask the seller कि भैया मेरे को यू नो 1 क्विंटल राइस चाहिए, राइट? अब 1 क्विंटल राइस के लिए आपने पेमेंट हाफ दे दिया, लेकिन हाफ पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट? सो द सेलर विल बी seller means not only the person who sell but also a person who agrees to sell, right?
Now, next heading is your goods and other related terms, right? Goods. Now, guys, goods की definition में क्या क्या चीज cover है under the Sales of Goods Act, guys. Goods means wait a second. Yeah, goods means goods means every kind of movable property other than actionable claim and money, and include the stock, shares, growing crops, grass, and other things attached to or forming part of the land which are agreed to severed before the sale or under the contract of sale, right? तो बेटा गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीज कवर हो गई? टेल मी, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीज कवर हो गई? Wait a second. Pen is not working. Give me. Please don't leave the class. It is very very important topic for your exam point of view also. Uh, okay. Wait a second. I think the screen is visible to all of you. All of the students. Screen. Yes, sir. Thank you very much. Give me 1 minute. I'm trying to make you understand the concept in a simple manner. Okay. So, guys, it is talking about the according to the Good Sales of Goods Act. कहता है गुड्स में क्या चीजें कवर होती हैं, राइट?
गुड्स। तो गुड्स में बच्चे क्या क्या चीज कवर हो रहे हैं? सी लुक इज सेइंग, कहता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या है बेटा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property. It is talking about every every kind of movable property, movable property, every kind of movable property. Now I would like to ask, what do you mean by movable? Movable का मतलब क्या होता है? Movable का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, दैट इज नोन एज मूवेबल। यस और नो? Yes or no? Bring the goods from one Yes, place sir. to another. From one place to another place, right? So goods according to the sales according to under the sales of goods act, goods की definition क्या कहती है? goods का मतलब क्या है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता है कि goods means every kind of movable property other than actionable claim। क्या क्या छोड़ेंगे आप? actionable claim, मनी को हम इंक्लूड गुड्स में नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम मनी को, क्योंकि अगर सपोज करो एक पार्टी मेरी सेलर है, दूसरी पार्टी मेरी क्या है? बायर है, राइट? तो एक पार्टी सेल करेगी, दूसरी पार्टी बाय करेगी। अगर हम मनी के बदले मनी लूंगा तो वो तो मेरा क्या हो जाएगा? बार्टर सिस्टम हो जाएगा ना। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम, पढ़ा है ना? व्हाट यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम गाइस मींस गुड्स के बदले गुड्स लेना। तो गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स में एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में कहता है कि हम क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे? आपका एक्शनेबल क्लेम, मनी, राइट? क्या क्या चीज? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। आई एम नोटिंग हियर। एक्सक्लूड क्या क्या करना है आपको? एक्सक्लूड करना है आपको। फर्स्ट मनी, आपको मनी इंक्लूड नहीं होगा, और आपका बच्चे क्या इंक्लूड नहीं होगा? एक्शनेबल claim, right? Actionable claim. I hope it is clear to everybody. So and include करता है, include क्या करेगा? आपका स्टॉक, आपका शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स you know, यानी कि जो फसल लगी हुई है खेत के अंदर, राइट? दैट इज नोन एज ग्रोइंग क्रॉप्स। क्योंकि जब वो पक जाएगी फल, तो हम एक उसको काटने के बाद यू कैन सेल, द फार्मर कैन सेल टू into the market। तो ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा। आपका ग्रास कवर है एंड अदर थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which I agreed to be severed before the sale or under the contract of sale। I hope it is clear to everybody। So actionable claim का मतलब क्या है? actionable claims which can be enforced only by an action or suit, or that is not a movable property of goods, even the fixed deposit receipt FDR are considered as goods under the section 176 of the Indian Contract Act, right? goods में आपका आगे कहता है goods include both tangible and the intangible goods, यानी कि आपका tangible goods are those goods which can be seen and touched, and intangible goods में which cannot be seen, right? intangible में आपका हो गया goodwill, copyright, patent, trademark, right? The stock and shares, gas, steam, water, electricity, and degrees of code are also considered to be the goods. So I hope goods की definition cover हो गई, समझ में आ गया? Now very important topic, classification of goods. Guys, classification of the goods. Goods are classified into three. First one is your existing goods, second one is your featured goods, and the third one is your contingent goods, right? And the further existing goods is also divided into the specific, ascertain, and uncertain. So let me make you understand the what existing goods किसे कहते हैं बच्चे? Existing goods are such goods as are in existence at the time of contract of sale। जो यानी कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी क्या कर रही है? एग्रीमेंट कर रही है, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्या कर रही है बच्चे? यानी कि मेरे यहाँ पे क्या है? मेरा एक सेलर है, दूसरा क्या है? मेरा बायर है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त गुड्स ऑल अवेलेबल है,
तो that will be known as existing goods. क्या होगा बेटा? That goods will be known as existing goods, right? So कहता है कि are such goods as are in existence at the time of contract of sale those who owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale, right? So existing goods may be the following kinds. Specific goods means the goods identified and agreed upon the time of contract of sale. For example, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ. Give me 1 minute. It is checking. It is. Yeah. We were here existing goods की बात कर रहे थे कि जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे है मिस्टर एक्स, ये क्या है बेटा आपका? सपोज करो यहाँ पे है मिस्टर राम, राइट? मिस्टर राम कहाँ जाते हैं? एक सपोज करो शॉप पे जाते हैं, शॉप, राइट? यहाँ पे कौन है आपका? सेलर. ठीक है, कौन है बेटा? सेलर. किसी किसको कुछ भी नाम रख लेते हैं, श्याम. ठीक है. मिस्टर राम जब शॉप पे जाते हैं, शॉप पे गए, सपोज करो ये शॉप क्लोथ उसकी है, कपड़े की है, तो वहां पे बहुत बहुत अलग तरीके की वैरायटी की जीन्स है. क्या है? क्या मतलब कैटेगरी है. तो उन्होंने, मिस्टर राम ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया. क्या क्या बेटा? आइडेंटिफाई किया भाई साहब कि मिस्टर श्याम से बोले, उनके जो सेल्समैन है, कि मेरे को इस कलर की और इस साइज की स्पेसिफिक कर दिया कि मेरे को ये वाले जीन्स चाहिए. तो दैट विल बी नोन एज, क्या बोलेगा? हम क्या बोलेंगे बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स एंड स्पेसिफिक. Existing goods are such goods as are in existence at the time of contract of sale. जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था दो पार्टी के बीच में, तो गुड्स वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, होगा, तो that goods will be known as existing goods, right? I hope it is clear to everybody. So those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale. Existing goods may be of the following kinds. A specific goods means identified and agreed. Identify, very very important. कितने अच्छी बात बोल रहे हैं. Identified and agreed upon that the time of contract of sale is made. This time मिस्टर राम मिस्टर श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. क्या कर रहे थे बेटा?
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो गुड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उस पे वो एग्री कर गया कि यस आई विल पे 2000 रुपीज फॉर दिस जीन्स, राइट? तो दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड। समझ में आ गई बात? So I'm repeating once again. Specific goods means the goods identified and agreed upon at the time of contract of sale. यानी कि हमारे वाले केस में मिस्टर राम जब शॉप पे गए तो शॉप पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस कलर की ये वाली साइज की उन्होंने आइडेंटिफाई किया और पेमेंट कर दी। तो ये दैट गुड्स, वो जीन्स क्या होगी, दैट विल बी नोन एज क्या क्या हम क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम बेटा? उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलेंगे हम बच्चे? दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलेंगे? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। क्या बोलेंगे? हेलो? Specific goods. स्पेसिफिक गुड्स। जब कभी भी बायर किसी भी की दुकान पे जाता है और गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई करने के बाद सेलर से बोलता है कि मेरे को इस तरीके का माल चाहिए, तो दैट गुड्स विल बी नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। पूछ सकता है आपको 2 मार्क्स में। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? क्या होता है स्पेसिफिक गुड्स? हु विल टेल? नितिन वर्मा। Yes, sir. What do you mean by specific goods? Sir, when a person goes to a shop and selects a category of good, that's called specific goods. Very good, very nice, very good. Good. Anurag, Shraddha, Tushar, what do you mean by specific goods? When a person goes to buy something, then he specific the details of the items, like in the clothes or any toothpaste. Like toothpaste, we take example. He not only said to the buyer that give me toothpaste, he identify and specify the toothpaste, like he give me the Colgate toothpaste of the rupees 55 one piece, then it will be specific goods. वेरी नाइस। यानी कि आप पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफिक हो गए, यानी कि बायर खुद बोल रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए। गुड्स तो उस शॉप पे अवेलेबल है, उस गुड्स तो वो अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में उसने बोला मेरे को ये वाला राइस चाहिए। आर यू गेटिंग? जैसे शॉप पे मान लो कि 10 वैरायटी का क्या राइस है, राइस 10 कैटेगरी के राइस है। राइस समझते हो क्या होता है? चावल। ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे को बासमती चाहिए, राइट? तो उसने बोला कि मेरे को बासमती चाहिए, ये वाला चावल चाहिए। उसने वो आइडेंटिफाई किया और उसका पेमेंट प्राइस किसको पे करा? उसने किसको किया बेटा? सेलर को पेमेंट कर दी। तो दैट गुड्स विल बी नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है? आसान है? ओके, क्लियर है? Yes, sir. नाउ मूविंग फर्दर, गुड्स मैंने बता दिया था कि गुड्स सेंस ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर गुड्स की क्या डेफिनेशन थी? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर देन एक्सटेबल क्लेम एंड मनी सर्कुलेशन आल्सो इंक्लूड क्या करता है? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ लैंड व्हिच agreed to severed राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मैंने बता दिया था, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन गुड्स के एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, फ्यूचर गुड्स होता है और कंटिंजेंट गुड्स होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में क्या है? स्पेसिफिक हो गया, एसर्टेन हो गया, अनएसर्टेन हो गया। हमने स्पेसिफिक गुड्स को हमने डिस्कस कर लिया, एग्जिस्टिंग गुड्स की डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसर्टेन गुड्स। Ascertained goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made, right? This term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term ascertain is used in the same sense as specific goods. When from a lot or out of a large quantity of uncertain, the number of or quantity contract is identified. Such identified goods are known as
ascertain goods. वही सेम चीज है। जैसे now this is the example, a wholesaler of cotton of 100 bales in his godown agrees, क्या करता है बच्चे, agree करता है, he agrees to sell 50 bales and these bales are selected and set aside. On selection the goods become ascertained, जब उसने select किया the goods become the ascertained. In this case the contract is for the sale of ascertained goods, as the cotton or bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract. It may be noted that before the ascertain of the goods, the contract was for the sale of unascertained goods. Now, unascertained goods किसे कहते हैं? Unascertained goods are the goods which are not specifically identified. यानी कि उसने गोडाउन में गया या किसी शॉप पे गया, बायर उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, राइट? नॉट ascertained, not specifically identified और ascertain नहीं किया at the time of making the contract. यानी कि सेलर और बायर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा था तो बायर ने उस गुड्स को स्पेसिफिक नहीं किया, तो दैट विल बी स्पेसिफिक ना करने की वजह से that goods will be known as unascertained goods. They are indicated or defined only by description or sample, right? For example, he agrees to sell to be one packet of salt out of the lot of 100 packets lying in a shop. It is a sale of unascertained goods because it is known as which packet is to be delivered. As soon as a particular packet is separated from the lot, it becomes the ascertained or specific goods. बात समझ में आ गई? Clear है? Shall I move further? Clear है guys? Yes, sir. Yes, sir. Now, future goods. Future goods. What do you mean by future goods, guys? You know, future goods means future goods. Future goods means goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale. क्या मतलब हुआ बेटा? समझ में आया? मैं समझाता हूँ. What is saying? Read this definition. Dhruv, are you there? Yatin Verma. Yatin. Sir, I am driving right now, sir. Sir, please let somebody else read. Okay. Who will read? Shraddha, Anurag, who will read? सर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद सर मैन्युफैक्चरर उस गुड्स को बनाना जब स्टार्ट करता है उसको सर फ्यूचर गुड्स कहते हैं. Read this definition, beta. पढ़ो बेटा ऐसे. Future goods means. Future goods means goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sales. आगे पढ़ो. Because a person cannot transfer what is not in existence. Example 6. Example भी सर पढ़ना है. 100 1000 clear. 1000 quintals of potatoes to be grown as a. It was not clear on my screen. 100 quintal of the potatoes to be grown on a field is not illegal. So the actual sales of future goods is not possible. This is an example of agreement to sell. B agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming years. This is a contract of the sale for future goods. P agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is contract of sale of future goods. Announcing to the agreement to sale. Agreement to sale. So क्या समझ में आया इससे बेटा आपको? इन सारे एग्जांपल से क्या समझ में आया? फ्यूचर गुड्स की क्या मतलब क्या? सर जो फ्यूचर में गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं उसका कॉन्टेक्ट सर आज ही हम बना के तैयार कर लें कि हम फ्यूचर में किसी और को सेल करने वाले हैं. तो सर फ्यूचर किसी और को क्यों? दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा ना बेटा. यानी कि यहाँ पे समझो ऐसे, ये ऐसा समझो, ये है आपका
मिस्टर कौन है ये, मिस्टर रहीम, ठीक है। और ये है आपके श्याम, ठीक है। सपोज करो ही इज अ फार्मर, क्या है बेटा, ही इज अ फार्मर। ये कौन है, एक तरीके का मर्चेंट है। कौन है, एक व्यापारी है। इसने मिस्टर श्याम से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। इसकी यहाँ पे बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी कुछ ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है। T agrees to sell to as all the oranges which are to be produced in his garden this year. It is a contract of sale of, yes. Sir, your voice is not. Voice is coming. It is clear. So T agrees to sell to sell all the oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract of sale of future goods amounting to agreement to sale, ठीक है। फ्यूचर गुड्स यानी कि जो भी आप यहाँ पे इसका, दिस इज द गार्डन, यहाँ पे किसकी फसल होगी, आपकी ऑरेंजेस की फसल होगी। किस चीज की फसल होगी बेटा, ऑरेंजेस। तो आज सपोज करो डेट है, आज डेट कितनी है, टुडे इज 19th जून 2021 बच्चे। टुडे आज इस किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर रहीम इज द मर्चेंट, इसने किसके, श्याम इज अ फार्मर, इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और फसल सपोज करो 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने कब होंगे आपके, सपोज करो दिसंबर ले लेते हैं। दिसंबर में 2021 में जाके इसकी क्या होगी फसल, ऑरेंजेस तैयार हो जाएंगे, व्हाटएवर द क्रॉप्स, ठीक है। तो अभी तो वो गुड्स अवेलेबल नहीं है ना, यस नो गाइस, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी। नो सर। अभी तो गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो गुड्स फ्यूचर में डिलीवर करेगा ना मिस्टर श्याम रहीम को, यस नो। यस सर। क्योंकि अभी तो वो गुड्स अवेलेबल है ही नहीं, ऑरेंजेस, यस नो। यस और नो, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो क्या है, तो ये कौन से गुड्स हो गए, ये जो ऑरेंजेस हो गए, ये कौन से गुड्स हो गए आपके, Future goods. फ्यूचर गुड्स। क्या हो गए Future बेटा, goods. फ्यूचर गुड्स, यस, वेरी नाइस। इस तरीके से थोड़ा रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये आपके क्या हो गए, फ्यूचर गुड्स, ठीक है। और इस तरीके का एग्रीमेंट जो भी होगा इन दो पार्टी के बीच में, तो दैट एग्रीमेंट विल बी नोन एज, कौन सा एग्रीमेंट बोला जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। बात समझ में आ गई। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे हम, एग्रीमेंट टू सेल। ये चार्ट समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर टू ऑल, Yes, sir. ठीक है। तो फ्यूचर गुड्स, आई होप इट इज क्लियर। बहुत ब्रीफ में मैंने बता दिया आपको, टाइम की शॉर्टेज हो रही है। कंटिंजेंट गुड्स समझते हैं, the acquisition of which by the seller depend upon an uncertain and contingency or uncertain event is are called as contingent goods. According to section 2 subsection 2, contingent goods also operate as an agreement to sell and not a sale, so far as the question of passing of property to the buyer is concerned. In other words, like the future goods, in the case of contingent goods also, the property does not pass to the buyer at the time of making the contract. For example, A agrees to sell, A agree कर रहे हैं to sell to be Picasso painting provided he is able to purchase it from the present owner. This is a contract for the sale of contingent goods. Now, let us understand what we mean by delivery.
डिलीवरी इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स. डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द another person. I'm repeating once again, guys. Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. As a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf. Right. Form of delivery, voluntary transfer of possession by one person to the another. Actual delivery and the constructed delivery and the symbolic delivery. ठीक है. What do you mean by? Let me understand that. What do you mean actual delivery? When the goods are physically delivered. And guys, listen carefully. Actually, delivery means when the goods are physically delivered to the buyer. Actual delivery take place when the seller transfer the physical possession. Possession समझते हैं ना? Physical possession of the goods to the buyer or to a third person authorized to hold goods on behalf of the buyer. This is the most common method of delivery. Clear है? Actual delivery के लिए समझ में आता है? Any doubt? Now, constructed delivery, when it is effective without any change in the custody or actual possession of the things, as the case of delivery by acknowledgement. For example, where a houseman holding the goods of A and is to hold them on behalf of B at a request. Constructed delivery take place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on the buyer behalf. Now, symbolic delivery. Symbolic delivery किसे कहते हैं बच्चे? When there is a delivery of a things in a token of transfer or something else. Delivery of goods in the course of transit may be made by handing over document of title into goods like billing of lading, railway receipt or delivery order, or the key of warehouse containing the goods is handed over to the buyer. With actual delivery is not possible. There may be delivery of the means of getting the possession of the goods. Right? Now, समझ लो मर्केंटाइल एजेंट किसे कहते हैं बच्चे? मर्केंटाइल एजेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 क्या कहता है? इट मींस एन एजेंट हु इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of the goods. Right? Such kind of agents are auctioneers or the brokers. Right? अब बात समझते हैं very important definition, that is the property. Property किसे कहते हैं? According to section 2 subsection 11 property को define करता है. कहता है कि property here means ownership or general property. In every contract of sale, the ownership of goods, यानी कि ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer. Property means ownership. Property means क्या होता है बच्चे? Property means ownership. Right? बार बात कर रहे हैं वो. So प्रॉपर्टी की बात करते हैं. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन बात कर रहा है? कौन सा लॉ? कौन सा सेक्शन है बताइए? 2 subsection 11. सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्या कहता है? प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ. किस चीज का ट्रांसफर होना चाहिए बच्चे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. यानी कि ओनरशिप क्या होगी? यानी कि सपोज करो दिस इज द मिस्टर एक्स, राइट, और ये है मिस्टर तुराब, राइट, मिस्टर तुराब. मिस्टर एक्स वांट टू सेल हिज कार. क्या कर रहे हैं बेटा? सेल क्या कर रहे हैं? अपनी कार सेल कर रहे हैं. मिस्टर एक्स कितना रुपए की? 10 लाख रुपीस की. 10 लाख रुपीस की. मिस्टर तुराब क्या कर रहे हैं बेटा? एग्री कर रहे हैं, राइट. तो इन दिस केस व्हाट इज मिस्टर तुराब क्या करेगा? मिस्टर तुराब विल पे द अमाउंट 10 लाख रुपीस टू मिस्टर एक्स. वो बदले में मिस्टर तुराब को क्या मिलेगा? कार मिल जाएगी.
Yes, yes or no? But Yes, sir. whenever the contract Yes, of sir. sale is formed, the transfer of ownership यानी कि ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाती है. क्या हो जाती है बेटा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. व्हेन द सेल इज कंप्लीट, व्हेन द सेल इज कंप्लीट, तो ओनरशिप किसके हाथ में चले गए? बताइए. इस केस में ओनरशिप किसको चले गए बेटा? पूरा आपको. Mr. Tura. मिस्टर तुरा को, राइट? क्योंकि मिस्टर तुरा हैज ऑलरेडी पेड 10,000 रुपीज. बदले में मिस्टर तुरा को क्या मिलेगा? गाड़ी मिलेगी. तो अगर इस केस में अगर बाद में कुछ भी नुकसान होता है गाड़ी के साथ बाद में, तो लॉस कौन बियर करेगा? हु विल बियर द लॉस? मिस्टर तुरा. Mr. Tura. बिकॉज ही इज द रियल ओनर. क्योंकि क्या हो गया? ही इज द रियल ओनर. कौन है बेटा? ही इज द रियल ओनर. तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि जिसके पास ओनरशिप होगी उसी को रिस्क बियर करना पड़ेगा. अब मैं ये चीज बाद में डिस्कस भी करूंगा. जिसके पास क्या होगा बेटा? ओनरशिप होगी. क्या होगी बेटा? ओनरशिप. क्या होगी? जिसके पास Ownership. ओनरशिप होगी Ownership. रिस्क भी उसको ही बियर करना पड़ेगा. याद कर लो ये बात. ये सेंटेंस हिंदी में याद कर लो. जिसके पास ओनरशिप होगी रिस्क भी उसको बियर करना ही पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. राइट? ठीक है. क्लियर टू ऑल? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. निधि, यतिन, ध्रुव, अनुराग, जतिन, मनोज, तुषार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. क्लियर है? मैंने क्या बोला ओनरशिप के बारे में? जतिन, अनुराग, नितिन, टेल मी. ध्रुव, नितिन वर्मा, मनोज, तुषार, सचिन यादव. Transfer of the ownership to the other person. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. राइट. ओनर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो जिसकी ओनरशिप होगी तो रिस्क किसको बियर करना पड़ेगा? जो owner है. Ownership. जिसके पास Owner जिसकी is ओनरशिप होगी. वेरी नाइस निधि, यतिन वर्मा, अनुराग. गुड. Few of the students are responding regularly. That's nice. क्लियर है? समझ में आती है बात? प्रॉपर्टी समझ बहुत डिटेल में समझाते हैं मैंने आपको. नाउ इंसॉल्वेंट डेफिनेशन समझते हैं. इंसॉल्वेंट. एनीबॉडी एल्स इन माय क्लास हु कैन टेल मी व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? हिंदी में कैसे क्या कहते हैं बेटा? निधि. सर कंपनी डूब जाना. कंपनी दिवालिया निकल जाना किसी भी चीज के. या तो इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है. राइट? यानी कि व्हाट डू मीन बाय दिवालिया निकल जाना? यानी कि एक्सेस ऑफ द लायबिलिटीज ओवर द एसेट्स. यानी कि एक्सेस ऑफ द लायबिलिटीज ओवर द एसेट्स. दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट. यानी कि आपकी कर्जा ज्यादा हो गया, आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है दैट यू कैन पे द डेट. राइट? क्लियर है? सो insolvent कैसे हैं? A person who is said to be insolvent when he ceases to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt or as they become the due, whether he committed or an act of insolvency or not. Right? Clear है? Now price. What do you mean by price? According to section 2 subsection 10, price means the money consideration for sales of goods. It is the value of the express in monetary term. It is the essential requirement to make a contract of sales of goods. Nidhi, are you there? Yes, sir. Read this line. Price. Hello? Yes, sir. I am there. Price. Sir, this price one is second point. Price section 210. Price means the money considerations for a sale of goods. It is the value of goods expressed in monetary terms. It is the essential requirement to make a contract of sales of goods. क्या मतलब हुआ? It is, sir, means the selling the goods and to buy the goods from the seller in. I'm audible.
Yeah, it is audible to me. Sir, Mhm. Anurag, you tell me. वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म नोन एज प्राइस। जो वैल्यू सर गुड्स की मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं उसको सर हम लोग प्राइस कहते हैं। Hmm. जैसे एग्जाम्पल। जैसे सर कार की वैल्यू 10 लाख, किसी और और भी गुड्स की जितनी भी प्राइजेस होती हैं। There are so many students in my class. Why the other students are not responding? Dhruv, you tell me what do you mean by price? सर बेसिकली सर प्राइस जैसे कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें मतलब जैसे ए के पास कोई गुड है वो बी को सेल करता है तो वो मॉनेटरी टर्म्स में उसको पे करता है तो वो प्राइस होता है सर। Jatin, Sir, the worth of a good uh, in terms of monetary value. okay. Okay. So, yeah, you are right. Price means the money consideration for the sale of goods. It is the value of the it is the value of goods expressed in a monetary terms. It is right. It is an essential requirement to make a contract of sales of goods. ठीक है, प्राइस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Otherwise, the contract of sale will not be formed. Right. Quality of goods include the state or the condition. Now, very important topic, that is the what is the basic difference between the sale and agreement to sale में क्या difference है. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं with the help of diagram, with the help of a distinction. What is the difference between the sale and agreement to sale? Write down in your copy. Write down in your copy what are the difference between the sale. What are the difference between the sale and agreement to sale? Very important. Maybe this question I can give you in your assignments. सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है बच्चे? टेल मी. Anybody else in my class? सर एग्रीमेंट टू सेल में सर वन साइडेड ट्रांजैक्शन हुई है, अभी सिर्फ बात हुई है कि हम तुम्हें गुड्स देंगे पैसों के बदले, और जो दूसरी टर्म थी सर उसमें टू वे हो चुके, तुमने बेच दिया प्रोडक्ट और उसके बदले पैसे भी ले लिए। बिल्कुल, बात तो बराबर है. वेरी नाइस. So, have you noted down this question in your copy? So, guys, what is the difference between the sale and agreement to sale? First point is your transfer of property की बात करते हैं. The property in the goods pass to the buyer immediately, right? जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था इस वाले केस में कि यहाँ पे कौन था, मिस्टर एक्स था. मिस्टर एक्स ने अपनी कार बेची 10 लाख रुपए की मिस्टर तुराब को. किसको बेची? मिस्टर तुराब को. ठीक है, तो क्या ओनरशिप क्या हो गई बेटा? हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो गई. क्या हो गई? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. इमीडिएटली, यस और नो? पसंद आ गई? तो द प्रॉपर्टी और ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? ओनरशिप इन द गुड्स पास टू द बायर. बायर को ओनरशिप चली जाती है इमीडिएटली. जैसे आपने पेमेंट करी वैसे कि वो इमीडिएटली ओनरशिप किसको चली गई? बायर को. और एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, यानी कि ओनरशिप यानी कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास, यानी कि पास होगी टू द बायर. बायर को ओनरशिप जाएगी
on the future date or on fulfillment of the some condition. क्लियर है? राइट. सेकेंड पॉइंट का समझते हैं. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is an executed contract, guys. A contract for which the consideration has been paid. यानी कि it is an executed contract. ठीक है. Contract for which the consideration has been paid. यानी कि इन हमारे वाले एग्जांपल में यानी कि consideration means something in return, guys. यानी कि मिस्टर तो आपको कार मिल गई और मिस्टर एक्स को क्या मिल गया उसके बदले में? क्या मिल गया बेटा? 10 लाख रुपए. क्लियर है? तो it is an executed contract. It is an executory contract for which the consideration is to be paid at the future date. यानी कि consideration आपको future date में पे करना है. ठीक है. पहला. सेकेंड. थर्ड पॉइंट, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसको मैं और थोड़ा कैन आई एलैबोरेट दिस वन? एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीमेंट सेल को थोड़ा और इलैबोरेट करें. ये समझ में आ गया? आ गया समझ में सर. सर आ गया. आ गया. हाँ जी. यस सर. एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. यहाँ पे है मिस्टर एक्स और यहाँ पे है सपोज करो मिस्टर वाई. ठीक है. क्लियर है? तो मिस्टर एक्स ने सेल किया सोल्ड गुड्स. क्या गया? सपोज करो गुड्स की जगह हम ले लेते हैं कुछ भी. वो शुड आई टेक? सपोज करो लैपटॉप. ठीक है. लैपटॉप भेजा जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए. आज की डेट क्या है? टुडे इज 19th जून 2021. राइट. एग्रीमेंट तो किस डेट पे हो रहा है आपका? 19 जून को. ठीक है. एग्रीमेंट टू सेल. या फिर हम इसमें और ऐसे इलैबोरेट कर सकते हैं इसको. लैपटॉप मान लो अवेलेबल नहीं है. ये बंदा मिस्टर एक्स क्या करेगा? अरेंज करेगा. ठीक है. और मिस्टर वाई ने कहा कि मैं आपको जो 10 जुलाई को क्या होगा? 10 जुलाई 2021 को आपको ये गुड्स अवेलेबल करा दिया जाएगा. यानी कि लैपटॉप इस डेट पे, फ्यूचर डेट पे इसकी क्या कर रहा है? अवेलेबल करा रहे हैं. अभी मिस्टर वाई के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी कि लैपटॉप. ठीक है. तो इस तरीके का क्या है? ये आपका फ्यूचर गुड्स हो गया ना. तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा दैट विल बी नोन एज एग्रीमेंट टू सेल. क्या होगा बेटा? एग्रीमेंट टू सेल. क्लियर है? और कहता है कि इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट द फ्यूचर डेट. यानी कि फ्यूचर डेट को जब हम 10 जुलाई को मिस्टर वाई लैपटॉप लेकर आएगा और मिस्टर एक्स को देगा, उसके बदले में मिस्टर एक्स को क्या मिल जाएगा? लैपटॉप मिल जाएगा. ठीक है. और मिस्टर वाई को क्या मिलेगा? पैसा. क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर. Remedies of the breach of the seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer. ठीक है. अगर यहाँ पे अगर सेलर क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है, केस कर सकता है. अगर बायर क्या करेगा? बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी देयरिन. अगर बायर क्या करते हैं? मना करते हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा क्योंकि सेल तो कंप्लीट हो गई है. अगर बायर मना करे कि आई डोंट वांट टू परचेज, इन दैट केस द सेलर कैन स्यू. उस पर केस कर सकता है सेलर. यहाँ पे क्या होगा बेटा?
एग्री पार्टी कैन sue, एग्री पार्टी क्या कर सकती है, एग्री पार्टी कैन sue फॉर द damages only, not for the price, ये ठीक है, unless the price was payable at the stated date. Liability of the parties, a subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer. Such loss or destruction is the liability of the seller. Burden of the risk की बात करते हैं. Burden of the risk of loss is that of the buyer, since the risk follow ownership. Risk of loss is that of the seller. Nature of the right, create just in ram, create just in personam. Right of resale, the seller cannot resell the goods, क्योंकि sale complete हो गई है, तो seller cannot resell the goods. In this case, on the other side, agreement to sale में seller क्या कर सकता है, goods को resell कर सकता है, since क्योंकि ownership अभी किसके पास है, seller के पास है, seller ने अभी अपना माल, किसके पास ownership seller के पास है, agreement to sale में. In case of the insolvency of the seller, the official assignee will not be able to take over the goods, but will recover the price from the buyer. The official assignee will acquire control over the goods, but the price, excuse me, the price will not be recoverable. In case of the insolvency of the buyer, the official assignee will have the control over the goods. The official assignee will not have any control over the goods. Clear है? समझ में आ गई? राइट ऑफ रीसेल के बाद फिर से बता दीजिए. Which one? राइट ऑफ रीसेल. Right. नेचर ऑफ राइट सर. Nature of right. Yes, just in RAM. Just in RAM. आप खुद से इलाबोरेट करके मुझे बताना, इस क्लास से थोड़ा रीड करके आना. ओके सर. तो ये शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में? It is not a ये बाहर की टर्मिनोलॉजी, you know. ओके सर. Now, can anyone explain this is the last topic of the session. What is the basic difference between the sale and a hire purchase? Who will read? Jatin, Anurag, Tushar, Nidhi. नहीं सर. बेटा पढ़ो इसे. Okay sir. So basis of differences, sale and hire purchase. Time of passing property. Property in the goods is transferred to the buyer immediately at the time of contract. Hire purchase, the property in goods passes to the hirer upon payment of the last installment. Position of the party. The position of hire purchase पता है क्या होता है? आप पढ़ो आप पढ़ो. Read it. Position of the party. The position of the buyer is that of the owner of the goods. Hire purchase. The position of the hirer is that of a bail till he pays the last installment. Termination of contract. The buyer cannot terminate the contract and is bound to pay the price of goods. The hirer may, if he so likes, terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installments. Burden of risk of insolvency of the buyer. The seller takes the risk of any loss resulting from the insolvency of the buyer. The owner takes no such risk, for if the hirer fails to pay an installment, the owner has right to take back the goods. Not audible. Yes. Read it. So completed. Means transfer of title. The buyer can pass a good title to a bona fide purchaser from him. The hirer cannot pass any title even to a bona fide purchaser. Resale. The buyer in sale can resell the goods. The hire purchaser cannot resell unless he has paid all the installments. Hire purchase समझ में आता है? What do you mean hire purchase? Anybody else? Hire purchase means when the goods are purchased in hire and not a full payment of the goods.
like in installments, purchase of car in loan installments and the vehicles, trucks, auto rickshaw, and debts. Yeah, very nice. सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे थे हम. ये आपका क्या है बेटा, सेल, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हायर Higher purchase. परचेज. ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आप समझते हैं. यहाँ पे कौन है, मिस्टर एक्स, और यहाँ पे है मिस्टर तुराग. ठीक है, इन्होंने अपनी कार बेची, कार सोल्ड, कार कितने की बेची, वही सेम केस 10 लाख. ठीक है, बदले में मिस्टर एक्स को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, 10 लाख 10 lakh मिलेगा. और मिस्टर तुराग को क्या मिल जाएगा, car. कार. तो ये तो आप सेल कंप्लीट हो गई ना, Yes, sir. सेल इज कंप्लीट. जब सेल कंप्लीट हो गई तो ओनरशिप किसको चली गई, ओनरशिप भी किसको चली गई बेटा, ओनरशिप भी किसको चली गई आपको, बायर को. किसको चली गई, बायर को. अब बात आती है हायर परचेज. ये है आपका हायर वेंडर. कौन है बेटा, ये वेंडर. हायर वेंडर. ठीक है, पता होगा, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. हाँ, पढ़ा है टॉपिक. Yes, sir. और यहाँ पे है मिस्टर यतिन को ले लेते हैं, यतिन. ठीक है, हाँ जी सर. मिस्टर यतिन ने क्या लिया, हाई वेंडर से क्या लिया, कार. क्या लिया बेटे, कार. किस बेसिस पे, हायर परचेसेस पे. तो कार की वैल्यू है सपोज 20 लाख रुपए की. तो मिस्टर यतिन के पास पैसा तो है नहीं 20 लाख रुपए. तो मिस्टर यतिन ने हायर वेंडर के साथ एक क्या करा, व्हाट ही हैज डन एन एग्रीमेंट. क्या क्या बेटा, एक एग्रीमेंट किया. और मिस्टर यतिन कहते हैं कि सर मुझसे डाउन पेमेंट ले लो अभी 5 लाख रुपए की, बाकी क्या आप क्या कर दो, मेरी इंस्टॉलमेंट क्या होंगी बेटा, इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी. इंस्टॉलमेंट भी, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट 4. जब तक मिस्टर यतिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे, डाउन पेमेंट की 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट तो कर दी मिस्टर यतिन ने हायर वेंडर को, और गाड़ी भी लेके कार यूज भी कर रहे हैं. क्या ओनरशिप मिस्टर वाई के पास है, टेल मी. वो सब हायर वेंडर के पास है. ओनरशिप किसके पास है, हायर वेंडर के पास है अभी. रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सर मैंने पूरे पैसे नहीं हायर दिए अभी. परचेज सिस्टम में ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करते हैं तब जाती है. Yes. Suppose करो, yes, very nice, very good answer. Happy with your performance. What's your name? इन्होंने मिस्टर यतिन ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी. क्या ओनरशिप चली गई, नहीं. ओनरशिप अभी हायर वेंडर के पास है. और यहाँ पे क्या कर दिया, ये भी थर्ड इंस्टॉलमेंट भी दे दी. प्रॉब्लम फोर्थ इंस्टॉलमेंट में क्या क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है मिस्टर यतिन को. नोटिस आया हाई वेंडर से, ही काइंडली पे योर फर्स्ट सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. नहीं दे पाए, सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, पे नहीं कर पाए. फोर्थ इंस्टॉलमेंट ही इज नॉट एबल टू पे द फोर्थ इंस्टॉलमेंट. इन दिस केस क्या करेंगे, हायर वेंडर क्या करेगा,
गुड्स को वापस ले जाए। यस, कार। क्या कर रीपर्चेस कर देगा इन दिस केस। क्या करेगा? क्योंकि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की ना, क्योंकि इस एग्रीमेंट में ये क्लॉज सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस एग्रीमेंट। जब हायर वेंडर और मिस्टर यतिन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, सारी बात क्लियर थी कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करनी है। if you are not able to pay any installment in this case, in that case, goods यानी कि कार will be repossessed, वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी कि जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर यानी कि हायर परचेजर यानी कि मिस्टर यतिन पे नहीं कर देंगे, तब तक ओनरशिप हायर वेंडर के पास रहेगी। जैसे ही फोर्थ इंस्टॉलमेंट, लास्ट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिस्टर यतिन पे कर देंगे, तो ओनरशिप भी मिस्टर यतिन के पास चली जाएगी। क्लियर टू ऑल? समझ आ गया हायर परचेज का कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, वेरी नाइस। अब उसको खुद से भी समझ सकते हैं। तो कहता है टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेल की कहता है प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीडिएटली, ट्रांसफर कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेल हो गई। ओनरशिप इन द गुड्स passes to the hire upon the payment, hirer upon the payment the last installment। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब तक ओनरशिप इसको परचेजर को जाएगी। But position of the property, position of the party, the position of the buyer is that of the owner of the goods. Position of the hirer is that of the bailey, is the pays of the last installment। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे तब तक हायर की यानी हायर परचेजर की पोजीशन क्या होगी? जस्ट लाइक अ बेली। Termination of the contract, the bailier cannot terminate, the buyer cannot terminate the contract and is bound to pay the price of the goods। buyer contract को terminate cancel नहीं कर सकता in case of a sale and is bound to pay the price of the goods। एक बार सेल कंप्लीट हो गई तो सेलर बायर को पैसा पे करना पड़ेगा in case of sale। हायर परचेजर के केस में द हायरर में if he so likes terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay remaining the installment, right? Burden of the risk of insolvency of the buyer, the seller can take the risk of any loss resulting from the insolvency of the buyers. The owner takes no such risk for if the hirer fails to pay an installment, the owner has right to take back of the goods। Clear है? और डिटेल में समझाया था। The transfer of the title, the buyer can pass a good title to the bona fide purchaser from him। ठीक है सर, जैसे कि इस वाले केस में मिस्टर तुराब को जब गाड़ी चली गई थी तो मिस्टर जब ओनरशिप इसके पास है तो ये आगे फर्दर सेल किसी और को कर सकते हैं। सपोज करो मिस्टर जेड को इन्होंने आगे ट्रांसफर सेल कर सकते हैं बिकॉज ही इज अ bona fide ओनर। ठीक है, इस केस में हायर मिस्टर यतिन आगे फर्दर रीसेल नहीं कर सकते जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर टू ऑल? यस सर। The hire cannot pass any title even the bona fide purchaser, right? रीसेल की बात करते हैं, the buyer in a sale can resell the goods। यहाँ पे जो मिस्टर तुराब था इन्होंने ये अपना रीसेल गुड्स को कर सकते हैं। इस केस में मिस्टर यतिन रीसेल नहीं कर सकता बिकॉज अभी ओनरशिप इनके हाथ में नहीं आई है। द हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब तक कि ये वाली लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे, ये वाली इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देंगे, ये आगे मिस्टर यतिन बेटा रीसेल क्या नहीं कर सकते? रीसेल नहीं कर सकता तब तक कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और डिटेल में हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? Shall I move? Clear to all? Yes sir। Everybody, Guru, Yes sir। Anurag, Didi, Captain, Tushar, Yes, sir. Sachin, Sir। Manoj, यस सर। clear है? Have sale and have purchase में difference समझ में आ गया? Yes, sir. सर। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एंजॉय कर रहे हो क्लास को? Yes sir, we are enjoying।
इंटरेस्टिंग है, थोड़ा theoretical सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, but I'm trying my best to make it business law as an interesting subject as far as possible for me, right? Soonly we are also going to conduct the internal assessment. Maybe I will give some internal question assignments, right? Or I can take the presentation. It depends upon the time. Let me see. मैं या तो फिर मैं आपका क्वेश्चन मतलब आई मीन आई विल गिव द प्रैक्टिकल इंटरनल असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट दूंगा लिखने के लिए, या फिर आई विल टेक द प्रेजेंटेशन, ठीक है। आई विल गिव एटलीस्ट मिनिमम 7 days या 10 days का टाइम दूंगा, सो दैट ही कैन इजीली थिंक और राइट प्रॉपरली द आंसर्स, ठीक है। सर आप अभी दे रहे हो क्या? अभी नहीं, I'm just informing you, Jitin. सर आप ये रिकॉर्डेड क्लास की लिंक सेंड कर सकते हो? Sure, beta. I will try my best for you. First of all, I have to. Yeah. What's your name? Anurag. सर खुशहाल। खुशहाल कपूर. Okay. समझ में आया? जितना पढ़ाया कम पढ़ाया, लेकिन I have covered a lot of things. समझ में आ गया? Yes sir. एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। Shall I cover it? Sir tomorrow please. बस लास्ट फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये टॉपिक छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेट अ सेकंड, आई नो यू आर गेटिंग very lengthy session. Don't panic. Now let us understand what is the basic difference. Now we are going to explain the sale as bailment. Bailment किसे कहते हैं? Anybody else in my class who can explain the concept of bailment? किसे कहते हैं bailment? किसे कहते हैं bailment? Anybody else in my class? No idea. Okay, let me explain you. Let me make you understand it with the help of example. सेल तो आपको काफी क्लैरिटी हो गई। बेलमेंट की बात करते हैं बच्चे। बेलमेंट, राइट? सुना है कभी बेलमेंट? किसको कहते हैं बेलमेंट? Look, a bailment is the delivery of goods for some specific purpose under a contract on the condition that the same goods are to be returned when the purpose is accomplished. I'm repeating once again, guys. कहता है कि a bailment is a delivery of goods for some specific purpose under a contract on the condition that the same goods are to be returned, वापस करना होता है when the purpose is accomplished to the bailer, right? Or to be disposed of according to the direction of the bailer, right? यानी कि a bailment is the delivery of goods for a specific some purpose. इसका एग्जाम्पल एनीबडी एल्स? इसमें एक लाइन है, क्या बात कर रहे हैं? आपने सपोज करो, लेट मी मेक इट एग्जाम्पल। सपोज करो आपका फोन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सपोज करो दिस इज माय फोन, इस फोन में कोई प्रॉब्लम हो गई और ये आपने क्या किया,
सर्विस सेंटर को आपने सर्विस सेंटर को दिया, क्या ओनरशिप चली गई इसकी? यस और नो? नो सर। नो। ओनरशिप किसकी रहेगी? किसकी आएगी इसके बाद? मेरी। मैंने इसको सर्विस सेंटर पे दिया, किस लिए दिया? क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी रिपेयरिंग के पर्पज से, राइट? सो a bailment is the delivery of goods for some specific purpose under a contract on the condition the same goods are to be returned. जैसे ही ये सही हो जाएगा तो सर्विस सेंटर को रिटर्न बैक करना पड़ेगा मेरे को, राइट? The same goods are to be returned when the purpose is accomplished to the bailer, right? तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती हैं। इसमें कितने पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे? इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें पार्टी दो इन्वॉल्वमेंट होती है। एक होता है बेलर, एक होता है बेटा आपका बेलर, और दूसरा क्या कौन हो गया आपका बेली, ठीक है? सेल में क्या होता था? सेल में आपको याद होगा, सेल में आपको मैं दो पार्टी कौन सी इन्वॉल्व होती थी? एक आपका सेलर, एक आपका बायर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक पार्टी होगी बेलर, दूसरी पार्टी क्या होगी? बेली, राइट? क्लियर है? सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आपने सपोज करो किसी की शादी हो रही है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। और सपोज करो ये है मिस्टर एक्स, ठीक है? मिस्टर एक्स है और ये है आपका सप्लायर। सपोज करो ये है मिस्टर वाई ले लो, चलो मिस्टर वाई की शॉप है। आपने किराए पे क्या लिया? सपोज करो रेंट पे कुछ मान लो कुछ सामान लिया, ग्रॉसरी का सामान लिया। सपोज करो ग्रॉसरी का आपने सामान लिया। किस बेसिस पे लिया आपने? एक तरीके से पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर एक्स और वाई के बीच में। मिस्टर वाई ने ग्रॉसरी समझते हो? ग्रॉसरी मीन्स ये ऐसे समझो, चेयर ले लो फॉर एग्जांपल। चेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मिस्टर वाई ने चेयर सप्लाई करी। कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। कितने दिन के लिए चेयर सप्लाई करी? क्या सप्लाई किया? चेयर सप्लाई करी 5 डेज के लिए। यानी कि सपोज करो टुडे इज 19 जून, 9, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5 डेज के लिए क्या मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को क्या करें? चेयर सप्लाई किया। और 5 डेज का उसका चार्जेस, ये कितना चार्ज कर रहा है? सपोज करो चार्ज कितना कर रहे हैं? चार्जेस सपोज करो सपोज कर लो बेटा 50,000 रुपीज़, ठीक है? मान लेते हैं मोटा 50,000 रुपये 5 दिन क्या। चेयर मान लो कितनी है? 100 चेयर सप्लाई करी, मतलब खरीदी नहीं है। मिस्टर एक्स ने क्या खरीदी नहीं है, एक तरीके से क्या किया? एज एन रेंट पे लिया, ठीक है? कि 5 डेज के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है। मिस्टर एक्स ने कहा मेरे को रिक्वायरमेंट है, और उसने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि जैसे ही तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्होंने लिया, यानी कि मान लो यहाँ पे शादी थी, यानी कि ठीक है रिक्वायरमेंट थी चेयर की। तो यहाँ पे क्या किया? जैसे ही शादी का फंक्शन फुल कंप्लीट हो जाएगा, 5-6 दिन यूज किया, उसके बाद वो चेयर क्या करनी पड़ेंगे? इसको मिस्टर वाई को क्या करना पड़ेगा? बेटा बताओ क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। वेरी नाइस, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बेलर, ये कौन हो गया? ये कौन हो गया बेटा? बेलर। ये कौन हो गया बेटा? बेलर। मिस्टर एक्स की यहाँ पे शादी थी, तो ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? बेली। तो इसकी यहाँ पे बेली।
तो जैसे ही इसका अपना पर्पस जो शादी का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट चेयर, दीज चेयर्स हैज टू बी रिटर्न बैक टू द बेलर। ठीक है, बात समझ में आई? ओनरशिप, हमने चेयर तो सप्लाई करी मिस्टर एक्स को, हमने चेयर तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को चेयर तो सप्लाई करी, उसके बदले में 50,000 रुपए चार्ज भी कर रहे हैं 100 चेयर के, 5 दिन के लिए दिया, सप्लाई किया था स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होगा, उसके बाद बेली को वो गुड्स रिटर्न बैक करना पड़ेगा बेलर को। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट इन दिस केस? इसमें बात समझ में आ गई क्या? सॉरी, अब बताओ बेटा, क्या बताया मैंने इसमें? जब भी गुड्स का परचेस नहीं किया जाता उसे रेंट में लिया जाता है या सर्विस को रेंडर किया जाता है, तब बेलमेंट किया जाता है। हाँ, ओनरशिप किसके पास रहेगी अभी? ओरिजिनल जो उसका ओनर है। तो इस केस में हम बायर और सेलर नहीं कहेंगे, क्या वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द टर्म बेलर एंड बेली। जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस, जैसे बोलो एवरीबॉडी, जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस, बोलो, जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होगा, उसके बाद बेली को होगा, वो गुड्स रिटर्न बैक करना पड़ेगा बेलर को। बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? बोलो, अब आप समझो। स्पीक अप। मैं कितने से डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर, बट आप बोल भी नहीं पा रहे। दिस इज नॉट फेयर। थोड़ा सा बोलो। बेलमेंट में कितनी पार्टी होती है? देयर आर 2 parties. There are parties, yes. 2 parties. 2 parties. नंबर सेकंड, बेलर एंड बेली। बेली। इस वाले केस में मिस्टर एक्स कौन है? बेलर। बेली। बेलर। मिस्टर वाई कौन है? सॉरी, बेलर। बेलर। इन दोनों के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? बेलमेंट। तो बेलमेंट की क्या है बताओ? बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है? बोलो इसे, पढ़ो इसे। बेलमेंट इज द delivery of goods for some specific purpose under a contract on condition that the same goods to be returned when the purpose is accomplished to the bearer or are to be disposed of according to the direction of the bearer. Very nice. कहता है a bailment is the delivery of goods for a specific purpose under a contract on the condition that the same goods are to be returned. That the same goods are to be returned when the purpose is accomplished to the bearer. जैसे ही purpose accomplished होगा, उसके बाद वो goods वापस रिटर्न बैक करना पड़ेगा बेलर को। ठीक है? और are to be disposed of according to the direction of the bearer. क्लियर है? हमारे वाले केस में ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि मिस्टर एक्स इज अ बेलर, मिस्टर वाई इज माय मिस्टर एक्स इज अ बेली एंड मिस्टर वाई इज अ बेलर। ठीक है? इन्होंने चेयर सप्लाई की थी, इसके बदले में चार्जेस चार्ज किया। उसके बाद मिस्टर एक्स हैज टू रिटर्न द चेयर टू द बेलर। ठीक है? नाउ आई एम let us understand what is the basic difference between the seller और bailment में क्या difference है। कहता है कि transfer of the property in goods, the property in goods is transferred, यानी कि ownership in goods are transferred from seller to the buyer, so it is transfer of general property. On the other hand, bailment के केस में there is only transfer of possession. पहले क्या है? There is only a transfer of possession, यानी कि possession को transfer किया जाता है, ना कि ownership को of goods from the bailor to the bailey, from the bailor to the bailey. possession of the goods था ना, ये देखो ना, इन्होंने चेयर सप्लाई की थी तो possession दी थी। yes or no? yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
बेटा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप, फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे। पोजीशन तो सप्लाई की थी, कोई इसमें ओनरशिप थोड़ी नहीं चली गई थी, चेयर्स इन्होंने सप्लाई की थी मिस्टर वाई ने, देखो चार्ट को। So there is only transfer of possession of goods from bailor to custody carriage, so it is a transfer of special property. Return of goods, the return of goods in a contract of sale is not possible, return नहीं कर सकते। The bailee must return, bailee को goods return करना पड़े, the bailee must return the goods to the bailor on the accomplishment of the purpose for which the bailment was made। जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा उसके बाद बेली को गुड्स रिटर्न बैक करना पड़ेगा बेलर को, राइट। कंसीडरेशन, यस सर, क्लियर है? यस सर, Yes, sir. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। जतिन, ध्रुव, दिनेश, Yes, sir. तुषार, Yes, सचिन, sir. मनोज। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Consideration, the consideration is the price in terms of money। consideration means something in return, यानी कि जब जब कभी भी सेल होगी तो उस केस में क्या होगा, प्राइस, यानी कि कार हमने बेची थी तो उस केस में क्या था, कोई प्राइस 10 लाख रुपए क्या मिला था, प्राइस मिला था, राइट। सो कंसिडरेशन क्या होगा, इस कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड बेलमेंट में द कंसिडरेशन में बी द ग्रेच्युइटस और नॉन ग्रेच्युइटस। क्लियर है? Clear to all? Is any doubt? Yes, Is there any doubt in the sale or No, sir. नो सर, कोई No, sir. क्लियर है? बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है मैंने इसको। क्लियर है? अगर सेल ऑफ गुड होती है तो एग्रीमेंट बनाया जाता है, यस। एंड इन बेलमेंट के केसेस में भी कुछ प्रिपेयर होगा। बेलमेंट की केस में बेलमेंट भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, बट जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा उसके बाद वो गुड्स रिटर्न बैक करना पड़ता है बेलर को। बेली रिटर्न किसको करेगा बेटा, बेली को। आपने ये वाला एग्जांपल मैंने कितना डिटेल में समझाया था। इसमें क्या था, मिस्टर एक्स की यहाँ पे क्या थी, शादी थी, इन्होंने 100 शेयर हायर ली, सर्विस ली बेलर से। जैसे ही शादी कंप्लीट हो गई उसके बाद इन्होंने रिटर्न बैक कर दिया, तो मिस्टर वाई इज द बेलर, मिस्टर एक्स इज माय बेली। बेली हैज टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। यस और नो? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगर इसमें कोई डाउट है बेल सेल और बेल में, देन यू आर फ्री टू आस्क। इट इज ऑलमोस्ट 2:15 आई थिंक। कितने घंटे का लेक्चर हो गया हमारा? 1 and 15 minutes. 1 hour and 15 minutes. 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes। और पढ़ना है? शैल आई प्रोसीड फर्दर? No, sir. समझ में आ गया? ध्रुव, जतिन, नितिन, तुषार, सचिन यादव, नितिन वर्मा, क्लियर टू ऑल? इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्जेक्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। शैल आई प्रोसीड फर्दर? और पढ़ना है? No, sir. No, sir. Sir, यस। sir, can we change the timing of the class from 12:30 to 1:30 instead of 1:32 further? This time it suits you. Sir, after 1:30, जैसे सवेरे 9:30 से क्लास होती है, उसके बाद 12:30 तक होती है, तो 3 आवर्स रेगुलर हो जाता है सर, उसमें ब्रेक नहीं है। उसके बाद आपकी भी क्लास हो जाती है तो 4 आवर्स रेगुलर हो जाता है। Okay, let me check. I will try. You are comfortable at 1:30? Okay, sir.
You're comfortable at 1:30. Okay. Let me check my schedule. Then I will inform you in our WhatsApp group. सर Okay. टाइम टेबल वैसे ही बना था पहले सर, Sorry. बीच में 1 आवर का ब्रेक था सर, उसके बाद अभी रीशेड्यूल हुआ ना तो सब मिस अरेंज हो गया। Okay. ओके सर, कैन प्लीज चेक सर टाइम टेबल Okay. Okay. Sure. आफ्टर 1:30. 1:30। After यस 1:30. सर। Okay. Let me check my schedule also. Tushar, I will give you a suggestion. ओके सर, थैंक यू सर। Hmm. And please keep revising your syllabus, and it is my suggestion from my side. अभी lecture has been completed from my side. टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया आपको, राइट। एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ काउंसलर, देखो बेटा टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एज यू नो वेरी वेल, राइट। टीचर को गुरु कहा जाता है, राइट। तो मुझे लगता है कि माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है ना, वो टीचर के ऊपर आती है। सो एज अ सुपरवाइजर, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, it is my suggestion to you, please keep revising your syllabus of all the subjects, right? पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बेटा ट्राई टू डू द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट? विद अ सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, मुझे लगता है कि यू नीड सम काउंसलिंग ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट? डिपेंड्स अपॉन यू। कैसे करोगे कि बेटा सपोज करो आप अच्छा अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको कितने बजे गेटअप करना है। सपोज करो यू वांट टू गेट अप 6 AM, राइट। फिर आप मतलब जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, वट एवर यू डू, या ब्रेकफास्ट आप जल्दी कर लो, 7 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर लो आप। उसके बाद अपनी क्लासेस, जो भी आपकी क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस लो आप अपनी, ठीक है। लंच जो भी है आपका लंच टाइमिंग, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करीब 3 से 4 बजे तक। उसके बाद बेटा अपना फोकस करो। 4 बजे के बाद फिर अपना स्टडी स्टार्ट करो फिर से। लाइक यू हैव टू रिवाइज 4 घंटे यहाँ पे आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी बेटा, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। स्टडी करना ही पड़ेगी। और क्या क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से टाइम मैट्रिक्स होती है, वो मैं कल किसी दिन समझाऊंगा आपको, इस पर्टिकुलर सेशन दूंगा। टाइम मैट्रिक्स फॉलो करो। टाइम मैट्रिक्स किसी क्या होता है? डिड यू नो व्हाट टाइम मैट्रिक्स? किसी को पता है टाइम मैट्रिक्स क्या होती है? सर अच्छा, किसी ने बताया है नहीं। टाइम मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे सपोज करो जो चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मोस्ट अर्जेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इस तरीके से बनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, तो उसको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। इम्पॉर्टेंट तो है कोई भी चीज़, लेकिन अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट, तो उसके को सेकंड कैटेगरी में। तो इस तरीके से टाइम मैट्रिक्स को फॉलो किया जाता है कि अपनी चीज़ों को क्या करना चाहिए, ट्राई टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। मतलब आप पहले अपना टाइम एक पेपर पे लिख लो कि मेरे को पहले क्या करना है। मतलब फर्स्ट व्हाट शुड आई से, डिड यू नो, प्रायोरिटी सेट कर लो कि मेरे को पहले ये काम फिनिश करना है, फिर सेकंड ये, थर्ड ये। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखो, सेकंड कैटेगरी में, जो फिर थर्ड। जो चीज़ अनवांटेड थिंग्स हैं उसको अपनी लाइफ से थोड़ा सेपरेट करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पे मैंने बताया।
प्रायोरिटाइज अपनी, सेट योर प्रायोरिटीज, ठीक है। पहले फर्स्ट थिंग क्या है आपकी, पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आपकी, स्टडी, ठीक है। सेकंड मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है, बैलेंस डाइट में होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट एंड रेस्ट भी होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो पहले फोकस किस पे करना है आपको, स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। एंड प्लीज मेरा एक सजेशन और भी है, मतलब इसमें मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सोशल मीडिया में क्या किस हिसाब की आपकी, व्हाट्सएप, फेसबुक, हजारों चीज़ें हैं, गूगल हैंगआउट, तो जो भी ये सोशल मीडिया आप ये यूज़ कर रहे हैं, इसको अपनी लाइफ से अभी ना, इसको मतलब मिनिमाइज करो प्लीज़, मिनिमाइज करो। अदरवाइज क्या होगा, अल्टीमेटली आपके लाइफ में क्या होगा, आपने पूरे 10 घंटे तो आपने यहाँ दे दिए, स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या दिया, 4 आवर्स, रिवर्स चल रहा है, रिवर्स। जबकि होना ये चाहिए कि इनको हम बाइकआउट करें कम से कम, और हमारा टारगेट किस होना, क्या होना चाहिए, स्टडी पे फोकस होना चाहिए, राइट। सो इंडियन जो यूथ है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, दे आर नॉट अवेयर कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर चला गया, सेकेंड सेमेस्टर चला गया, थर्ड सेमेस्टर में भी चला जाएगा, तो दे आर नॉट अवेयर कि टाइम कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है। वंस इट गॉन इट विल नेवर कम बैक, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट योर प्रायोरिटीज, ठीक है। क्योंकि बेटा apart from giving the lectures on the topic of my subject, you know, business law, financial accounting, cost accounting, direct taxation, research methodology, मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी करियर की काउंसलिंग भी करना चाहिए, उनको थोड़ा सही डायरेक्शन देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर एक चीज़ में और क्लैरिटी कर दूं, यहाँ पे सपोज करो ये स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मान लो आप 2021 इज गोइंग ऑन, आप ग्रेजुएट कब हो जाएंगे, 2024 में ना। यहाँ पे आपके पास बीकॉम की डिग्री होगी, यहाँ पे स्टूडेंट ए, बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, स्टूडेंट ई, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। कौन है ये स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन को बहुत लाइटली लिया, इन्होंने बहुत लाइटली लिया, ये सीरियस हो गए, ये भी सीरियस हो गए, इन्होंने लाइटली लिया, इन्होंने साथ साथ में अपनी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, CA, CMA और अदर थिंग्स। तो अल्टीमेटली आगे की लाइफ किसकी अच्छी होने वाली है, जिन्होंने अपनी लाइफ करियर को, जिन्होंने अपना इस टाइम एंजॉय किया, ग्रेजुएशन टाइम इन्होंने एंजॉय किया, तो आगे चल के ये सफ़र करेंगे। इन्होंने ग्रेजुएशन टाइम में अच्छे से स्टडी की, तो इनकी आगे की लाइफ अच्छी होगी, राइट। सो द पॉइंट आई वुड लाइक टू से दैट, मतलब फोकस कहने का मतलब, पॉइंट कहने का ये है कि बेटा ये जो टाइम जो चल रहा है आपका ग्रेजुएशन का, 2020 में आपका एडमिशन हुआ और 2004 में सपोज करो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, ये टाइम जो है ये वापस नहीं आने वाला, वेरी वेरी प्रीशियस टाइम, ठीक है, ठीक है। और फिर आपको अल्टीमेटली आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। देखो जो पेरेंट्स है ना, वो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं आपसे, दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि अपार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू विल स्टार्ट डूइंग जॉब, you will be financially stable, right। तो अल्टीमेटली योर पेरेंट्स, अगर ईश्वर नहीं करें, खुदा नहीं करें, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो अल्टीमेटली मतलब आपके पेरेंट्स को हर्ट होगा, राइट। सो आप कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लें जिससे आपके पेरेंट्स को हर्ट हो, ठीक है। नेवर हर्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपको यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, उस चीज़ पे काम करो और मेहनत करो ईमानदारी के साथ,
definitely you will succeed in your life. So never had your parents, they are, आपको अपने पेरेंट्स को जाके सपोर्ट करना है. सो कीप वर्किंग हार्ड, बी फोकस एंड प्लीज मेरी तरफ से किसी को पर्सनल, इट इज़ माई जनरल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, डोंट टेक इट पर्सनली. करियर आपका है, लाइफ आपकी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है. एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, मुझे फील हुआ कि आई शुड give some counseling in this talk on this topic. That's why I try to give some counseling. So please don't take personally. अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो I'm so sorry. Wish you all the very best. मेहनत करो and keep working hard. Stay happy. Thank you, sir. Anything else you would like to say? What, sir? Anything else? जो don't take personally and keep working hard. मेहनत करो ईमानदारी के साथ, ठीक है? Keep revising. Okay. If you're having any doubt, you are free to ask. Right? Thank you very much. God bless you all. Take care. Thank you, sir. Anything else you would like to ask? Manoj? No sir, thank you sir. No, sir. Thank you. No, sir. Thank you, sir. Clear है? Yes, sir. कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आप? Okay. Thank you very much, all of you. Take care. God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Excuse me, sir. सर मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी आपसे, मतलब कुछ थोड़ा सा पूछना था. Are you free now, sir? Wait a second. So keep the option on right, sir. Here, stop recording in the screen displayed. This one? Sir, in the white, sir, white bar. This one? Side, sir, or side. Then side also. So what? Sir, this logo. Logo? Yes, sir. Cursor. Remove cursor to the right, sir. Stop recording here. This one? Sir, click right, sir. No, sir, here. I can't say. Sir, near a cut sign here, recording. Stop recording here. In the blue. No, sir. One. Keep right. Like where time and date is given. Time and date on the laptop. Yeah. Yes, above. Yes.